Shall we start, ma'am? Hello, Renu, ma'am. Yes, we can start. Shall we start? Yes. Shall I? Hello. Am I audible? Hello. मुझे आपके नहीं आ रही है डॉक्टर साहब का। Hello. Yes. Hello, ma'am. अब आ Shall we start now? Yes. Okay. Okay. Respected Meenakshi, thank you for inviting me. Ayush to the and also thanks to Chairman sir. Dr. Renu? Yes. Dr. Renu, please mute yourself. Okay. Okay. Good afternoon to all, and thank you so much for joining us today again. Myself, Dr. Sonika Charyal, MD Panchakarma, working as an assistant professor in Srimati Urmila Devi Ayurvedic Medical College, Hoshiarpur. I welcome you all in the series of Ayush Vibhodhini 2. First of all, I would like to thank Chairman Sir of our college, Engineer Amarjit Singh Walia, and respected Principal Ma'am, Dr. Meenakshi Nath, and respected Vice Principal Ma'am, Dr. Mridhu Sharma, for their continuous support during this webinar series. It is good initiative for college development and encouraging the students. I'm thankful to the coordinator committee members, Dr. Deepika Minhas, Dr. Pooja Thakur, Dr. Jyoti Sarowa. I will request our principal ma'am, Dr. Meenakshi Nath, to share few words to boost our confidence. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Sonika. सभी को नमस्कार। आयुर्वेद ज्ञान विज्ञान की निरंतर बह रही इस अविरल धारा में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं मीनाक्षी नाथ, प्रिंसिपल श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक कॉलेज, अपने समूचे कॉलेज की तरफ से आयुष विबोधिनी इस वेबिनार श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। यह वेबिनार श्रृंखला श्री धन्वंतरी हर्बल्स अमृतसर के सहयोग से आयोजित की जा रही है एवं इसे निर्बाध रूप से चलाए रखने के लिए मैं अपने कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर मृदु शर्मा एवं आयुष विबोधिनी समन्वयक समूह डॉक्टर दीपिका मिन्हास, डॉक्टर सोनिका, डॉक्टर पूजा एवं डॉक्टर ज्योति का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। एवं अब मैं आज के इस वक्तव्य के लिए स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर रेणु का। डॉक्टर रेणु जो कि ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के शालाक्य विभाग में कार्यरत हैं एवं शालाक्य तंत्रोक्त क्रियाकल्प विधि में सिद्धहस्त हैं। डॉक्टर रेणु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी व्यस्ततम समय सारणी में से हमारे लिए समय निकाला और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वक्तव्य हम सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेणु। और अब मैं इस ऑनलाइन मंच का संचालन करने के लिए अब फिर से डॉक्टर सोनिका को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर सोनिका। Thank you, ma'am. Thank you so much. We are very much pleased and happy to have another legendary expert with us today, Dr. RENU Prasad. Before I call upon our honorable speaker to shed lights on today's topic, let me give you all a brief introduction about her. Ma'am has done UG in 2004 and PG in 2009 from one of the leading and prestigious colleges of North India, that is Rajiv Gandhi Ayurvedic Medical College, Paparola. She has worked as a lecturer at Himalaya Ayurvedic Medical College, Rishikesh in March 2009. In October 2009, Ma'am joined in Rishikul Ayurvedic College, Haridwar. She joined there as a lecturer from October 2009 to December 2014. Presently, Ma'am is working as an associate professor there in Shalakya department. She has guided and co-guided more than 25 MS scholars. Dr. RENU has published more than 40 national and international journals. Now I request Dr. RENU Prasad ma'am to share your valuable words with us. Over to you, ma'am. Dr. RENU? Yes. Over to you, ma'am. Okay.
Thank you, Dr. Shalakya, and thank you, respected Principal Ma'am, Dr. Sakshi Ma'am, for inviting me again in the Ayush Vibhodhini 2. I also thanks Chairperson Engineer Amarjeet Singh Vadia sir and Vice Principal Dr. Madhu Sharma. Thank you, Dr. Sonika, for there to coordinate with me also. Dear audience, today's topic is the continuation of the Kriya Kalpa procedure. Earlier, I discussed about the Tarpan Karam in the first series. Now, today I am going to discuss about Sek, Ashutan, and Anjan. So, Ashutan, Sarvesham, Akshiroganam, Adau, Ashutanam, Hitam, Rup, Tod, Kandu, Harsh, Ashru, Daha, Rag, Nir, अष्टांग योगों में ये स्पेसिफिक कहा गया है कि जो हमारी आंख में अगर कोई भी अक्षर योगों में प्रोसीजर स्टार्ट करना है क्रियाकल्प में तो आश्योतन जो है वो Hello, Renu ma'am. Hello. 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 Ma'am, your slides are not visible. Okay. One second. Now you can see my this screen. The mobile screen is visible, I think. Okay. Now it's on after OPD. Now it's visible. Visible, ma'am. Yeah, ma'am. Visible now. Okay. Okay. So first is Ashutan. Ashutan is सर्वेषां अक्षियोगानां आदौ अश्योतनम हितम, जिससे कि हमें ये समझ आ रहा है कि अश्योतन ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको सभी आचार्यों ने कहा गया है कि अक्षी रोगों में सबसे शुरू में उसे किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? जिसके लिए रूप, क्रोध, कंडू, घर्ष, अश्रु, दाह, राग, बहन, जैसा हमें पता है कि किसी भी डिसऑर्डर में एक्यूट कंडीशन है या क्रॉनिक कंडीशन है, और आज हम ही लोग सिर्फ पहले टीकाकार में जो ये कहेंगे कि सेक और अश्योतन या फिर विडालक बिंदु हमें एक्यूट डिसऑर्डर में करना चाहिए, और जो अंजन है या तर्पण फुटपाथ उन्हें हमें क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में ही लेना चाहिए देखेंगे। तो उसके लिए एक रेफरेंस है कि हम ये कह पाते हैं कि इसे एक्यूट कंडीशन में किया जाना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि अगर राग होगा, कंजेशन है, या फिर दाह है, शोफ है, या अश्रु श्राव है, तो उसमें क्या है वो कंडीशन ऐसी है जो कि सबसे शुरू में एक्यूट इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन है उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज भी अगर कोई पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आता है तो हम सबसे पहले आश्योतन कराते हैं, और आश्योतन का ही जो फॉर्म है वो आई ड्रॉप्स है, जिसको कि ऑप्थेल्मोलॉजी की जो प्रैक्टिस है सबसे ज्यादा वाइडली यूज या टॉपिकल जो हमारे पास मेडिकेशन का वे है वो आई ड्रॉप्स है। इसमें हमें जब भी मेथड क्या है कि डिकॉक्शन या जो डिस्टिलेशन प्रिपेयर्ड है उसे हमें ना तो वो बहुत ही हॉट होना चाहिए ना तो कोल्ड होना चाहिए, और उसको आई में इंस्टिल्ड करना है। देखिए आई तो ओपन होगी और इसके टाइप्स में है लेखन, स्नेहन या रोपण। क्योंकि त्रिदोष है तो लेखन अगर हमें कफज है व्याधि तो उसमें है, स्नेहन जो है पित्तज वातज व्याधि वाला अगर कोई नेत्र रोग है उसमें करेंगे, और रोपण जो है पित्त प्रधान जो व्याधि है उसमें करेंगे। मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है इसका डायरेक्ट डिफ्यूजन है, और कॉर्निया के ऊपर अगर हम इंस्टिल करते हैं डायरेक्टली ओपन आईज पे तो ये लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक कॉर्निया होने की वजह से वो एब्जॉर्प्शन में
होता है कोरोना से। Hello, इसमें ma'am. दो I'm sorry, ma'am. Your slides are not visible again. Okay. Can I share it with you and then you can start this, Kanika ma'am? Sorry, ma'am. Can I share with you from the other device? So No you problem, can, no problem, ma'am. You can share with any oh, device. no, I share it to you. Okay, okay. Okay, Okay. okay, ma'am. Okay, just share it with. Now, Now it's visible. Now it's visible, ma'am. It's okay now. Just continue. Yes, ma'am. It's visible now. It's visible. who's having 7 to 8 or 10 to 12 drops. Like 7 to 8 is of this Lekhan, Ashetan, 10 drops of Nehan, as we all know, and the 12 drops of Ropan. तो मेन ये है कि अगर हम इन ड्रॉप्स के बारे में देखें तो मॉडर्न में अगर जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है उसमें ड्रॉप्स जो है वो कम रहती है और आयुर्वेद में है कि 7 से 8 ड्रॉप्स कैसे एक ही बारी में डालेंगे और वातज पित्त कफक के अकॉर्डिंग तो उनमें डिफरेंशिएशन में यही है कि जो कोई भी ड्रॉप में अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है 0.5% की आई ड्रॉप है तो वो QID या PID QID किसी भी हिसाब से हम उसको चला सकते हैं और डिपेंड करता है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी है और उसी तरह के आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी अगर ये 7 to 8 ड्रॉप्स हैं या 10 ड्रॉप्स हैं 12 ड्रॉप्स हैं तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर 8 ड्रॉप्स हैं तो हम इसको जैसा हमें पता है कि ये 1 या 2 ड्रॉप से ज्यादा हमारा जो लोअर कंजक्टिवल सैक है वो उसको रिटेन नहीं कर सकता बिकॉज ये ड्रेन आउट हो जाएगा हमारे जो लेक्राइमल एपरेटस है तो क्या कर सकते हैं कि इसको हम भी अपने आयुर्वेदिक के ड्रॉप में इसको डिवाइड कर सकते हैं लाइक 3 ड्रॉप इन द मॉर्निंग बट क्या करें कि 1 ड्रॉप की इंस्टॉलेशन के बाद जस्ट फंक्शन को थोड़ा सा ब्लॉक करेंगे और फिर वेट करके 1 या 2 मिनट के बाद अगेन 1 ड्रॉप इंस्टॉलेशन एंड देन अगेन तो थ्री करके 6 जो 9 ड्रॉप्स है वो तो PID अगर हम इंस्टॉलेशन करने तो हो जाती है और सिमिलर वे में 4 ड्रॉप्स भी करेंगे तो अगर हम यहाँ पे किसी वर्क में लेते हैं अगर अत्याधिक ड्रॉप जैसे पिछला ड्रॉप है उसको पेशेंट को बनाया जाता है तो पेशेंट को वैसे ही CID या QID डोजेज में अगर हम कहेंगे पेशेंट के लिए आयुर्वेदिक डिस्क्राइब डोज है उसको डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका जो होल्डिंग टाइम है वो 100 वाक मात्रा के लिए आचार्य ने कहा है कि आई ब्लिंक के हिसाब से भी कहा है पर दूसरा है कि जैसे हम अपनी जो जानी है उसको चारों तरफ से घुमाते हुए एक चुटकी बजाते हैं वो भी मात्रा का है तो अब इसी को अगर हमने काउंट किया जो पेशेंट से ये करते हैं तो ऑलमोस्ट 2.5 मिनट से 3 मिनट के अराउंड आता है कि अगर हम एक आचेतन 7 to 8 ड्रॉप्स या फिर 10 ड्रॉप्स लेते हैं तो इतना पेशेंट को टाइम लगना चाहिए उस ड्रॉप को डालते हुए तो ये इसका होल्डिंग टाइम नेक्स्ट है कि इसका जो हमें डालना है ड्रॉप को वो कितना हाइट से होना चाहिए तो आचेतन की हाइट के लिए उन्होंने 2 अंगुल के लिए मेंशन किया है बात के लिए जैसे बताया गया है कि ये अपराह्न में होना चाहिए जो पित्त के लिए है वो मध्याह्न में और जो कफ है उसका जो है वो पूर्वाह्न में ड्रॉप से डाली जानी चाहिए पर जरूरी नहीं है कि अगर हमें पेशेंट नहीं आ पा रहा है ये तो एक प्रॉपर जो है कि अगर आपने प्रकृति परीक्षण कर लिया है कफ व्याधि है कफ एडिशन है या पित्त एडिशन का पेशेंट आ रहा है तो आप उसको एक शेड्यूल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तो कह सकते हैं बट आज के टाइम में अगर पेशेंट सुबह आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि पाँच प्रधान व्याधि वाला नहीं आप तो नहीं कर सकते तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग जो है वो ड्रॉप इंस्टॉलेशन के लिए को कहा जा सकता है तो इसका जो स्नेहन रोपण लेखन है इसके लिए जो औषधि है वो उन्हीं के वात शामक है तो वो वाली औषधि में हम बात
प्रोडक्ट में देंगे, टिप में देंगे या फिर जो भी आती है। फार्माकोलॉजी में क्या है कि 80% ऑफ these drugs instantaneously going through the lateral duct, and bioavailability drug is administered in the aqueous form with the short tissue contact time and the less bioavailability less contact time है and for the short duration है, इसलिए टॉपिकल जो ड्रॉप्स है या आस्पेटन उसको हमें फ्रीक्वेंट उसकी डोजेस बतानी पड़ती है। और अब्जॉर्प्शन रेट जो है वो मैक्सिमम कैसे हो सकता है कि डायरेक्ट कॉर्नियल परमेबिलिटी की वजह से इसके कंडीशन में फास्ट करता है। आस्पेटन की जो योग है जो कॉमनली हमारी प्रैक्टिस में यूज होते हैं, जैसे ट्रिप्ला आई ड्रॉप है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं और 3 इंस्टीट्यूट है जिनमें है मार्केट में स्पेसिफिकली अलग से देखना तो नहीं है, बट और पॉपुलेशन में कुछ आयुर्वेदिक आस्पेटन आते हैं जैसे एलामेट है, जामू है, कुछ आई ड्रॉप है, आईटोन है, ब्राइट साइड है, ऑक्टाग्लोव है, तो वो हमारी आस्पेटन की ही आज की फॉर्म है। ट्रिप्ला आस्पेटन बनाने में बहुत सिंपल है जिससे डिस्ट्रीब्यूट बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है इसकी शेल्फ लाइफ, क्योंकि विदाउट प्रिजर्वेटिव की शेल्फ लाइफ कैसे यूज करेंगे एप्लीकेशन और वो कितने टाइम स्टैंडर्डाइजेशन में अभी भी अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी से जितना लें तो एंटिटी लेवल पे अगर बनाना है तो थोड़ा सा सेल्फ लाइफ में दिक्कत आती है। अदरवाइज अगर हमें 7 डेज के लिए किसी भी पेशेंट को देना है, फॉर एग्जाम्पल माइल्ड कंजक्टिवाइटिस का हम अभी में लेंगे, कैटेगराइजेशन कैन बी डन विद लाइक है, एलर्जी है, सेप्टिक है, वो करने के बाद अगर हम पेशेंट को देंगे तो प्रत्याशी आस्पेटन भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर हमें एलर्जी में देना है तो हम सिगरी के कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। और इसमें जैसे एक और हमने किया था आर्म का जब ऑपरेट किया उसके बाद करंट भी जाती जो आस्पेटन है उसको भी प्रिपेयर किया, बस प्रॉब्लम उसको सेल्फ लाइफ करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी की हेल्प लेनी है ताकि वो प्रॉपर वे में प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाए और उसकी पैकिंग प्रॉपर स्टेराइल होनी चाहिए, बिकॉज में वो इंस्टेल करता है जैसे चिगरी पत्ते चोरते हैं उसका भी देख सकते हैं। पर अगर विदाउट प्रिजर्वेटिव पेशेंट को जैसे पत्यादि स्वाद है उसका आस्पेटन हम बनाते हैं तो फिर पेशेंट उसको डाले और फिर फ्रिज में स्टोर करे तो एटलीस्ट वो 5 to 7 days, then again patient can use it पट्टू आमलकी मुलेठी all the types of abhishan, specifically sisters abhishan अगर है इसमें उसको बर्निंग सेंसेशन कहा जाता है, कंजेशन ज्यादा रहता है ना, तो कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट में हम दे सकते हैं। देन तन्ने जैसे कि यूजुअली जब नहीं भी पढ़ा था तब भी देखा होता है कि मदर जब आँख में बच्चे को लग जाती है तो क्या होता था कि जो मात्र तन्ने है उसका भी यूज किया जाता है, तो उसको जल्दी से ड्रॉप डाल देते थे। तो उसका वर्णन भी संहिताओं में मिलता है, मस्तु अर्जुन में और आदि का योग जो है सब कंजक्टिवल हेमरेज की जरूरी नहीं है कि हम वही एस्टिंजन ड्रॉप दें कि जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसमें अपनी बनाई हुई भी ड्रॉप में से देंगे तो वो उतना ही वर्क करती है। दैट इज ऑल्सो सेल्फ फीलिंग पेशेंट के लिए थोड़ा फीडिंग और एस्टिंजन वर्क करेगा तो आप बनाकर ड्रॉप की जाती है। तो आस्पेटन एक्चुअली सभी के लिए स्पेसिफिक नोन है जो कि पहले से पढ़ा है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम वाक मात्रा को कितना डिफाइन कर रहे हैं। मैक्सिमम 2.5 मिनट to 3 मिनट में आस्पेटन का वन टाइम इतनी ड्रॉप 7 to 8 आइदर 10 ड्रॉप्स जो कि आपने कहा है उसको जब डिवाइड करके डालेंगे तो इतना टाइम पीरियड एक साथ के लिए कहा। अगर उन्होंने 8 ड्रॉप का है कितना मिनट लगता है, अगर हम डिवाइड करते हैं और वेस्ट भी ना हो स्पेसिफिकली करना है तो पंक्तम को ब्लॉक कर लिया जाए कलिनिक संधि की तरफ पता है, और उसके बाद एक ड्रॉप डाल करके अगर वो 4 ड्रॉप आयुर्वेद की रिपीट करते हैं देन वेट फॉर अ मिनट देन अगेन इंस्टिल अनदर ड्रॉप। तो इस तरह से अगर हम करें तो हमें इतना नहीं लगेगा कि बॉटल में 1 ही ड्रॉप डालते हैं टीआईडी डालने से काम हो गया,
ही ड्रॉप जाने पर कैन ऑल्सो गिव वेरी इजीली टीआईडी और सीआईडी, और ये डोज है वो मेंटेन जाती है। स्पेसिफिकली क्योंकि जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और विच प्राउड की एसोसिएशन का ही रेफरेंस है कि सर ये आई ड्रॉप का फॉर्म स्टार्ट हुआ। सेक सेक है सेकस्तु सूक्ष्म धाराभी सर्व अस्मिन् नयने हित मिलिताक्ष मर्मस्य प्रदेश चतुर्विधात्। Pouring of the thin film of meditative solution into closed eye for a stipulated period in the supine position. आश्लेषण also in the supine position जो कि लिखा गया है, बट आप sitting position में भी देखें तो ऐसा तो नहीं ना हर टाइम को supine position पे वो अपने आप ही डालेगा, तो सिटिंग में भी इसको दिया जा सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली पेपर पे भी हम ये चीजें समझ सकते हैं कि आज के टाइम में ऐसी बुक में ऐसे लिखा है हम नहीं कर पा रहे तो उसको नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले बताया कि अपना हाथ में लिखा है हुआ तो सिमिलर वे इसको सुपाइन से तो करना है, बिकॉज हमारा है तो लेना होना चाहिए, और आंखें जो है मिलित मिलित आंखें क्लोज क्लोज आई से 4 अंगुल की हाइट से जो है हमें सेक करना है। तो इसमें भी लेकर सेहन रोपण एल्पिनो के ऊपर डायरेक्ट डिफ्यूजन है कि मात्रा काल आश्लेषण से ज्यादा 200, 300 एंड 400 मात्रा काल है रिस्पेक्टिवली, और इसका टाइम उससे डबल हम कर लेंगे तो 7 और 10 to 12 मिनट। अगर जैसे आपके पास सिटिंग से आ रहा है, दूसरे घर से चल के आ रहा है, देन वो आपको टाइम दे रहा है, तो आपको मिनिमम उसको 10 मिनट तो एक एक्सपीरियंस में लेकर के चल सकते हैं कि उसको कोई वो हानि नहीं होने वाली है। तो उसको स्टेप जो है वो मॉडरेट लेवल पे 7 to 10 मिनट के लिए किया जा सकता है। और उसमें भी जो हम यहाँ स्पेसिफिक करते हैं जैसे कि किस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं। Take having very miraculous result. For example, किसी को lid edema है, cause अभी पता नहीं है कि why there is lid edema. Lid edema, ocular pain, and some frontal headache, astronomic जो patient है, just directly go for take. पहले तो पेशेंट को एक एक्सपीरियंस मिलती है कि हमें कुछ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। Here we start with the Isla, Mulethi, Haridra, इस तरह की स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है जो विदेश में ही वर्क कर रहा है। उसके बाद इलेबोरेट हिस्ट्री लेकर के you can go for other क्रियापद। तो सबसे पहले पेशेंट आए अगर यहाँ पे जैसे जो भी कंजक्टिवाइटिस में भी या ब्लॉन्काइटिस है उसमें बहुत अच्छा हेल्प है, और स्पेसिफिकली क्या होता है कि ब्लॉन्काइटिस में जो रस्ट है तो हम इसको इतनी हाइट डालते हैं कि अपने आप उसके लिए वॉश आउट होता है। Also the mucus plate increases conjunctivitis, और ये इतना सूदिंग उसको रिलीफ देता है जैसे कि हमारी शिरोधारा है। और देखिए एक्सोनोटिक जो सिम्टम्स वाले बच्चे फ्रंटल है या स्टूडियो के पेशेंट है, क्योंकि आपको ठीक भी तो करना है कि आपके पास कौन से पेशेंट आते हैं उनसे आप ये कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं पड़ा है ये, और ड्राई आई का पेशेंट है ये भी ले सकते हैं। एमडीडी के पेशेंट में बहुत अच्छी रिजल्ट है जिसमें विद विलालक देन फॉलोड विद द अदर थेरेपी। तो इनिशियली जो है इसको स्टार्ट करके तो मेन रेफरेंस है कि आद्योक्रम में एक्यूट एनर्जी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। Disposal rate is low, viability less है, absorption less because there is no direct physical contact with the eye, but and the skin continues to stimulate nerve endings, mechanical effect of washing activity as I already said. एक योग हम क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ जो चीजें अभी तक हो गई उसकी दादियाती लेफ्ट साइड पे, और अभी भी उसका ऑफिस साइड है, और वास्तव जैसे बिल को जटा मानसी उसका हम लोग बना करके सेव कर सकते हैं बना के उसको बहुत गर्म भी ना हो और ठंडा हमें उससे 4 अंगुल की हाइट से गिरा। और केक के लिए जो हमारा मेथी वाला पॉट होता है उसकी हेल्प से यूज करें। अगर उसका
बड़ा है तो उसमें कॉटन बीज लगा करके भी इन जो इरिगेशन धारा है उसको बनाया जा सकता है, बस इसमें डिसकंटिन्यूटी होती है। तो सिमिलर प्रोसेस में बहुत ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लेना है और उसके बाद ही किया जा सकता है, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन कवच के लिए भी बुफला, मुलेठी, नागर यूज किया जा सकता है। 5 गुटक या दूरी से अधिक चाय का यूज करने से पक्षीपात में बहुत अच्छा है। दुग्ध का विथ एंड कमांड का यूज किया जा सकता है। और आम्र जो अर्म से है उसमें कोई स्वाद है जिसे तरफ का सेवन घात जैसे हीट एक्सपोजर सभी गर्मी में बहुत आते हैं, तो सिंपल है कि अगर हम उनको एक एस्टेंशन डॉक्टर बजाय आप उनको बोलो अगर कोई टाइम आपके पास दे सकते हैं कि आप आइए और चेक कराइए, तो क्या होता है कि अपना जो पेशेंट है उसको पता है कि थेरेपी के लिए उसको जाना भी है, पेशेंट भी हॉस्पिटल में मेंटेन्ड है एंड सेंटर वाटर कोकोनट और सभी मिलता है, तो विलेजी और हम उसको कर सकते हैं। अगर क्योंकि वो अभी हॉट सीजन स्टार्ट होने वाला है तो उसको भी ज़्यादा करने चंदन, द्राक्षा, करके उनका पाक करके फिर सेव कर सकते हैं। तो स्वाद मतलब जितने भी देशों के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वन इज द अंजन। अंजन में एप्लीकेशन क्या है ये सभी को पता है, तो जनरल जो डिस्कशन है उसमें होना चाहिए। अनक्ति अनेक अंजन, अंजन मीन टू स्प्रेड और प्रॉपर्टी a topical application of drug in the form of paste, powder, thick liquid to the conjunctival surfaces with an applicator is called अंजन। जैसे कि आपने या इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है काजल बनाया जाता है, इसी तरह से क्रियाकल्प प्रोसीजर है अंजन, जिससे कि हम पेशेंट को अप्लाई करते हैं। और इसमें व्यक्त रूप से दो से ले नेत्र एक छुटे से प्राप्त आचरण कहते हैं कि जब क्लिनिकल फीचर प्रॉपर स्टार्ट हो जाए, मैनिफेस्टेड हो जाए, लोकलाइज इन द आई एंड द एक्यूट कंडीशन सबसाइड हो जाती है, तब इंजेक्शन स्टार्ट also indicated in the acute inflammatory condition of the eye. Then type में है अंजन के लिए बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें कि सिर्फ एक ऑइंटमेंट देखने की देखकर सेवन प्रसादन करके जिनको बताए गए हैं, जिनको अपनाते कल्पना में है गुटिका, रस क्रिया, चूरन। चूरन की फॉर्म में भी अंजन है। रस क्रिया की जो बहुत लिक्विड नहीं है, जैसे कि जैसे च्यवनप्राश एक रस क्रिया है, तो इसी तरह से में रस क्रिया के फॉर्म में भी अंजन है। और गुटिका अगर किसी भी हमने ड्रग को सुखाया उसकी वर्की के फॉर्म में उसको रखा और जब अप्लाई करना तब उसको पेशेंट जैसे कंट्रोल बढ़ती है, या तो उसको शहद में घुस दीजिए या फिर शुद्ध जो गुलाब जल है उसको यूज करें। तो 3 फॉर्म गुटिका, रस क्रिया एंड। और इनकी जो नीड है वो ऐसे हो सकते हैं कि अगर उत्तज है तो उसमें हम मध्यम तरह का, और जो अगर उत्तज है तो मृदु, और जो वातज है तो मध्यम, और कफज है तो अंजन भी हम यूज कर सकते हैं। और रस दूध या अष्टांग से लिखा है कि मधुर, अमल, लवण, कटुक चाय के हिसाब से भी अंजन है। सौविलांजन, सांजन, नीलांजन जो है वो इनमें हर 2 मिनरल में कंपाउंड है, उसके हिसाब से भी रचना का वर्णन किया गया है। अंजन जो है सिमिलर है जो हमने देखा, जो सबको आयुर्वेद के वजह से पता होता है कि बात का में किसका सुकून में होगा में यूज किया जाता है। डोजेस जो है इसकी इम्पोर्टेंट है। जो गुटिका अंजन है वो तीक्ष्ण अंजन अगर
घरेलू के लिए जैसे कहा गया है, जैसे जो मटर का दाना है अगर उसको देखा जाए और उसका उपयोग किया जाए, या फिर विदंग मात्रा है, विदंग मात्रा में भी इनका लिखा गया है प्रक्रिया का। तो विदंग एक को हमने मेजर किया तो 10.5 मिलीग्राम आता है, तो ऑलमोस्ट 30 to 60 मिलीग्राम के बीच में अंजन का डोज होना चाहिए। और चूर्णांजन जो है वो शलाका, शलाका में कैसे है कि अभी जो है वो 2 शलाका, मृदु जो है 3 शलाका और स्नेही जो है 4 शलाका। जो उसकी लेंथ बताई गई है 10 अंगुल या बस उसके हिसाब से, या फिर सिंपल वे होता है जो ऐसी शलाका अगर नहीं बनी है, जो ग्लास रॉड है उसको आप चूर्ण में डिप करिए, जितना ग्लास में लगता है वैसा सलूने चूल्हा अपांग में भी उसको यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने भी कभी इसको वे करने की कोशिश की, बट जब वहाँ पे वर्क होता है तो फिर स्मॉल स्केल की जो वेइंग मशीन है उसको विडा स्टार्ट करके उसके हिसाब से जितना बनता है वो पेशेंट अपनी अंगुली में लेकर के फिर कनेनी को अपांग लगाए या अपांग को कनेनी उसको लगा देन पेशेंट कैसे करना है कि आपको पेशेंट लगाइए या वो जो पोजिशन है वो उसकी लोअर लिड को ड्रैग करिए, जैसे हमने अपर क्वांटिटी को डालना है लोअर क्वांटिटी है तो हमें अंजन को यूज करना है। देन इसको एक तरफ से ड्रैग करके देन जस्ट दो द अंजन चलागा विद द राइट हैंड एंड केयरफुली यूज फ्रॉम द इनर टू द आउटर जस्ट टू अवॉइड टच डायरेक्ट विद द कॉर्नर की प्रॉब्लम ना हो। और फिर आई को जल्दी क्लोज करेगा, बिकॉज अगर किसी ने जैसे कंटिन्यू वर्क किया तो एक लेसन है, अगर उसको अप्लाई करके कभी देखा हो तो वो बहुत सभी जो है उसमें ऑलमोस्ट फिकटिव है, सेंडर है, प्रिपरेशन तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। इवन सिर्फ एक शहद का ही अगर अंदर लगाना तो एक लेखन का वर्क करता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आँख को बंद करेगा बेसिक इंस्ट्रक्शन में भी नॉट एज कंट्रोल वर्किंग किसी को टेरिजियम को या फिर टेरिजियम को स्पेसिफिकली यहाँ यूज करते हैं या फिर एलर्जी से रिलेटेड रहते तो कहें कि आपको ये बहुत तेज रहेगा, जिसको मिर्ची किसी ने आँख में डाल दी है बट उसको क्लोज कर तो 5 मिनट अगर वो आई बॉल को रोल कर सके, आँख को अंदर घुमा बंद करके जैसा कि बुक में लिखा है तो कर सकता है, अदरवाइज बस क्लोज कर ले, थोड़ा वॉशिंग आँख में से होगी, उसके बाद क्या है तभी उसको ओपन करें। अगर बार बार ओपन करता रहेगा तो उसको प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट ज्यादा होगा और जो मेडिसिन है वो भी जल्दी जो है वॉश आउट होगा। आँख बंद करें, आँख में 5 मिनट उसको वॉश करें और उसके बाद जो शेडिंग एप्लीकेशन है जैसे कि बॉडी में मेंशन है उसको कर सकते हैं या फिर भी यूज कर सकते हैं। अंजन शलाका जो है वो 10 अंजन के लिए लिखा है, अगर कोई के हिसाब से बना सकते या फिर जो हमारा फ्लावर बर्ड है पेट में हो और उसको लगाया जाए, नहीं है तो आप ग्लास रोल का और सर से अंगुली से यूज किया जाए। बट अभी अगर हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी से टाइप है और अगर हम लार्ज स्केल पे बनाना चाहते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं, वो सिमिलर वे में वर्क रहता है तो उसकी प्रिपरेशन वैसे ही होती है स्टेराइल वे में और एक बेस दे करके तैयार करके उसको हम लेजर लगा करके भी उसकी फिलिंग करवा सकते हैं। इट्स मोर सुटेबल फॉर द पेशेंट। और चूर्ण तो वैसे फार्माकोलॉजी में यही है कि मिनिमम डिस्पोजल रेट है उसका, मोर टिश्यू कंटेक्ट टाइम है ज्यादा देर के लिए लगा रहता है, देन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, सबसे लेवल क्लियर है। और जो लार्ज कंपाउंड होते हैं वो ऐसा नहीं करते बिकॉज ऑफ लार्ज मल्टीपल साइज और जो इसका जो इफेक्ट है वो पॉस्टीरियर सेगमेंट तक भी कुछ यहाँ तक देखा गया है और ये बहुत सारे सर्वक्षी भी डिस्क्राइब है। और सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में से कम कहा गया है कि ब्लड जो है अंजन जो योग है उनमें चंद्रप्रभा वती है, फिर सेंध वाली अंजन है इत्यादि
है, जो करते में खाते बच्चे है, अर्जित है, पूरा दिन पे भी खाए है, जो टिकिया खरीदारी अध्ययन है, लड़की से कंपटीशन टिकिया चंद्रोदय वर्ष जो वो ही है, तो आरंभ पे छोटे पे छोटे आकाश पे होती है, और इसके अध्ययन कंफर्ट विषय है, तो कंफर्ट को रिवाइज करना ही है इस टॉपिक को, क्योंकि सभी को ही पता है, बस उसकी डोज ड्यूरेशन या फिर हमें क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, बस इतना ही बताना। हेलो। तो यस मैम। हाँ। हेलो। हेलो हेलो मैम। हाँ, यस। I think it's over now. यस। Okay ma'am. Okay. Okay, thank you so much ma'am. If any query or any question from anyone, please unmute yourself and ask your questions. Madam, good afternoon. Good afternoon. Madam, Anjana Aschotana, if you don't mind, how many cases you have performed? What were the results? Yes. Sir, we have did almost 5 theses over Ashyotan, and it's having a mild, almost moderate type, almost 50 to 60% relief in case of allergic conjunctivitis. In case of infective conjunctivitis, we start when we did with the Pittaj Abhishand correlation, then having only the subjective symptom relief actually. And in case of Anjana, I did also my PG with the topic Ushiradi Anjan, but I just got subjective symptoms really, not in case of visual acuity. But in pterygium, when we did this Anjan, then there is no recurrence. I did almost 20 patients, only the one having the recurrence, and others after the Hedan there is no recurrence. Acha, I think what are the age groups above 40? No, sir. Age group is for the Aram, there is above 30 plus. Madam, in your slides, once you showed that say in SACM slide, L by S by R, 200, 300, 400, what were the figures? What are the full forms? Sir, Lekhan, Ropan, and Sadhan. Okay. Madam, in the diabetic related eye disorders, how can we go forward to treat? Yes, sir. It's very clear cut as the diabetic retinopathy patient. You want to ask about retinopathy or just the diabetic patient and diseases of anterior side? If retinopathy, Yes, how we retinopathy. manage in a diabetic retinopathy, Yes. how we prevent, we can manage. Yes, only we can manage, sir, because I personally not seen any result, but I just read all the papers or related to my colleagues. If after duration, there is with the help of Kalpana, we can slow down the process of diabetic retinopathy. Personally, I didn't do. Madam, if you don't mind, I will ask you one more question. Yes, yes. Madam, according to the ecological and environmental and everything was contaminated, adulterated, Dravyas Yes. somehow they have made chemicalized, and somehow even Grutam now we are getting packed one and everything. Yes. In these days, can we go for confidently
application of all dravyas without any hesitations? Yes, sir. We can go, but there is only the one question regarding the sterile, how the sterile eye drop is, because in the Madam, madam, corneal only yes, just I'm crossing you. Just because it is a vital organ in the human body, if we physically, if we do anything wrong, entire the life of the patient will get suffer. right. So even any drops or anything pharmaceutical made by one or anything, even some of the even example I told you already, Grutam is packed now and everything. Getting in the Yes. we are in the chemical world. How to we come out bravely and confidently? Sir, actually, if you prepared freshly decoction, just if you want to give in form of ice then prepared decoction, because then it is almost a level of sterilized and then used for like every day. Call the patient or mainly go for the Patyadikvat or do some combination with the pharmaceutical companies if you want. And gritas are very good preparation. Actually, I use for the this protocol preparations or Vedanath or this one is good one. You can go for the use. There is Doctor, problem can, also for tell Ashutan me. actually. Okay. Yes. Madam, one more thing. In corneal ulcer, can we treat? Sir, many Netra Visharad do, but I don't. I don't like to treat cornea. Okay, madam, I ask you last question. Yes. Consciously, are you teaching your students with a open mind and can they get the confidence at the time of teaching? Please. Yes, sure. Because I personally only just this experience only Kriya Kalp can give us this name and as a Netra Visharad. So we do here almost every day 30 to 35 patients of every Kriya Kalp other than Putpak, because Putpak is very time taking to prepare, and others of the eye and ENT we do daily, and we got result. Other in case of posterior segment, we just do only the tarpan, not the shodhan kriyas, because it will get I think more better results if do after shodhan, but others we try to do daily. Okay. Okay, doctor. Patient is nowadays very intellectual and very searching in the Google and everything. He is finding many things in this season. But yes, yes, but there very much patients having you can go for the reflective errors, you can go for dry eye, you can go for CVS. There is no harm. Patient just want your assurance and some which he or she can do with the only the drops instilling in the office. Why not? We can call them for the treatment for a therapy for the 10 days or 7 to 10 days, then it is very good, because there is also the psychological component na sir, so it's moral booster for the patient also, so we should do. Doctor, one more doubt. In the dryness in the eye, some of the lubricating eye drops allopathy doctors are prescribing. What we do in our system? Yes sir. We can as I my sir said, ki for if there is Shermer strip, the result is like severe dry eye if it is 5 mm. So we can go for Seka, Vidalak and Pindi. Then if it is moderate to mild, then try to Tarpan. And if patient is not willing to come, then advise to use should go greater application at the night. Doctor, thank you very much. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you so much for giving your valuable time to us. Today's session was really very informative and knowledgeable for us and our students. Thank you so much, ma'am. Thank you.